Good morning viewers, I hope you are all doing well, and in this particular video we are going to talk about the very famous poem My Mother is 66, which has been composed by Kamala Das. She was born in 1934 and died in 2009. She was born in Malabar, Kerala. She was an Indian autobiographical poetess. Her pen name was Madhavi Kutty. You must know these facts because these all are important if you want to study this poem. Before studying this poem, you may also go through the text of the poem. Before that, I am going to tell you the key facts about this poem and the authors as well. And after that, we will discuss some questions as well. Okay. So the novel which she wrote was very famous. The name was Alphabet of Lust. And her short story collection was also very well known, which was Padmavati the Harlot and Other Stories, right? So moving to the next, in the particular poem she talks about a place where she is going. She is going from her parents' house to the Cochin airport, which is now to these days it is known as Kochi as well. It is in Kerala. Some words that are used in this poem maybe that are unfamiliar to you. They are doze, which means sleep, corpse, which means dead body, sprint, which means run, spilling, which means going out, merry, which means happy, spelling is different, M-E-R-R-Y, van, which means colorless, faded, which has no color, pale, which means sad, unhappy, and the last one, the figure of speech which has been used in the poem is simile, when she says that her mother's face was looking like a late winter's moon, right? And ek, I hope you all know that ek does mean pain, right? Pain. She has compared her mother's face to late winter's moon, right? And now we will discuss some questions as well. So the very first question is, what kind of pain and ache does the poet feel? Poet किस तरह के पेन को फील करती हैं? So the answer that I have written here is the poet's pain and ache is very similar to her childhood fear. Her pain is very similar. बिल्कुल उसका जो दर्द है, उसका जो डर है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है उसके बचपन के डर जैसा. As a child, we all have the fear of getting away from our mother. एक बच्चे के तौर पर हम सभी अपने माँ से दूर होने से डरते हैं. The poet also gets the same thought. उन्हें भी यही thought आता है, यही विचार आता है. When she notices her mother's face, जब वो अपनी माँ का चेहरा देखती हैं. आपको याद होगा जब पोएम में पढ़ेंगे टेक्स्ट तो किस तरह से उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था, वो सो रही थी और ऐसे में तो लगता है ना कोई कि कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह, तो इसलिए वो थोड़ा उस डर को, उस दर्द को रियलाइज कर पा रही थी. दिस इज सो बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन. हमने वो बात लिखी भी है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुंह खुले सो रही थी. She was looking like a corpse, और वो एक कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह लग रही थी. This is the reason that the poet feels the ache. यही कारण है कि वो उस दर्द को महसूस करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग कह के क्यों दिखाया गया है? अब यहाँ पर स्प्रिंटिंग मीन्स आपको हमने बताया अभी तुरंत कि रन करना होता है, दौड़ना. पेड़ तो दौड़ते नहीं, दे आर लिविंग बट दे आर इमूवेबल. सो हमने अक्सर ट्रेनों से, बसों से बाहर देखा है कि किस तरह से हमें लगता है कि मानो पेड़ें दौड़ रही है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है. तो यहाँ पर उस दृश्य का क्यों वर्णन किया गया है, उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया है, तो हमने आंसर में क्या कुछ लिखा है देखते हैं. बट उसके साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट प्रेजेंट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? और उन्होंने उस खुशहाल बच्चों का भी दृश्य क्यों दिखाया है, उनके दृश्य के बारे में क्यों बात किया है इस कविता में, जबकि एट द सेम टाइम शी इज वेरी सैड, वो काफ़ी दुखी भी है. हमने आंसर लिखा है, द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज प्रेजेंट द टोटली ऑपोजिट इमेज. जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं
दौड़ते हुए पेड़ जो हैं, ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट है उसकी प्रेजेंट स्टेट के, क्योंकि वो सैड है, उसकी माँ के जो डेड सा चेहरा, जो उदास सा चेहरा या कह सकते हैं डेड बॉडी सा चेहरा देख रही है, तो वो उदास सी है। बट वो तुरंत से एक तरह से टर्न करती हैं, एक खुशहाल दृश्य का वर्णन करती हैं। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, उससे पहले हर मदर्स बॉडी इज मोशनलेस, उसकी माँ की जो शरीर है वो मोशनलेस है, उसमें कोई गति नहीं है। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन ऑल्सो प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट टू हर सिचुएशन, उसकी परिस्थिति के जस्ट ऑपोजिट एक सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है। इट शोज दैट हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये यह दिखाता है किस तरह से दुख और सुख हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, हमें दोनों को ही स्वीकारना होता है। वी कांट एक्सपेक्ट ओनली गुड थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ, हम अपने जीवन से सिर्फ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बुरी चीज़ें तो विरासत में मिलती है ना। चलिए, इन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। लास्ट क्वेश्चन है कि मदर को जो है लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया। हमने आंसर लिखा है, द पोएट हैज कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज इट इज एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट सिचुएशन है उनके लिए। शी इज़ नॉट हैप्पी टू गो अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से दूर जाकर खुश नहीं है। इवन द मदर्स फेस इज फुल ऑफ सैडनेस, और माँ का चेहरा भी उदासी से भरा पड़ा है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द लेट विंटर्स मून, और यह लेट विंटर्स मून से काफ़ी मिलता जुलता है। विच इज़ वन, जो कि काफ़ी फेडेड होता है, कलरलेस होता है, एंड पेल, और सैड दिखता है विंटर के टाइम में, खास करके लेट विंटर्स में हम मून को देखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है दैट सी हैज़ कंपेयर्ड द मदर टू द लेट विंटर्स मून, कि उन्होंने अपनी माँ को जो है या अपनी माँ के चेहरे का जो कंपैरिजन किया है, तुलना जो की है उन्होंने, वो की है लेट विंटर्स मून से। आई होप यू गॉट इट। थैंक फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच videos, such informative and useful videos, and you may also request some if you want in the comment section below. Thanks for watching once again.